Now, today we are going to have an amazing and interesting session, which is cracking the cat parajumble code. And in this particular session, I'm going to make you understand the approach or the strategy that you're going to use in order to crack a parajumble. Right? Uske baad, we are also going to have a look at a few tips and tricks. And then we are going to solve a few questions of parajumbles as in CAT past papers, right? And these are going to be some most important questions. I've handpicked such questions and we're going to solve them today. And we're going to understand a lot of new strategies कि हम किस तरह से पैराजंबल को क्रैक करके 100% accuracy के साथ उसको करेक्ट कर सकते हैं, right? So I hope you guys are interested and excited for this session. I just want a yes from all of you if you guys are ready so that we can move on. And I want equal participation from each one of you in today's session. I want this to be a two-way session wherein you guys can ask me any doubts at any point of time. Yes, Harshita, definitely. I mean, this is something that's going to be useful for the whole verbal section because it has a lot of elements, right? So let's start. Now, first of all, before we start the session, one simple question to all of you is, what is a parajumble according to you? Parajumble आपके according क्या होता है? And how is this useful as far as your CAT examination is concerned? What is a parajumble? Quickly, your answers in the chat box. See, I'll again tell you that I don't want this to be a one-way session. You guys can ask me any doubts at any point of time. My chat box is right open in front of me, right? So please, let's just make the best use of these 45 minutes and or 1 hour or so, right? And just ask me, don't hesitate in asking me any of the silliest doubts that you want to, right? Okay, Aditi, correct. Absolutely. Disassembled coherent paragraph. Yes. Group of random words. Okay. Yes. Jumbled paragraphs to make a meaningful sentence, to arrange different sentences not in order. Yes. Yes. Correct. Correct. All of you are correct. Yes, absolutely. So I'm getting so many answers and basically all of you are saying that a paragraph is arranged in a jumbled way and then we have to arrange them. We have to arrange those statements in such a way that it makes a sensible paragraph. Absolutely correct. Yes, all of you are correct. Thank you so much for such amazing contribution. ऐसे ही answers आने चाहिए chat box में, right? So what is a parajumble? I assume आप लोगों को at least concept पता है looking at the answers कि आपके सामने 4 statements रखे होंगे, 4 to 5 statements जो कि एक jumbled form में होंगे. All those statements will be in a jumbled form. आपको क्या करना होगा कि उन्हें arrange करना होगा इस तरह से that it makes a sensible or a coherent paragraph. It makes a logical paragraph. जो भी आप statements arrange करके paragraph form कर रहे हो, it should make sense to you, right? So that's what a parajumble is. Now, how important it is as far as your CAT examination is concerned. CAT has constantly been asking questions on parajumbles, right? और 2 से 3 questions आप definitely expect कर सकते हो आपकी CAT के exam में. Right, जैसे आपको पता है that parajumbles is one of the types of questions asked to you in the VA section, verbal ability section. और VA section में करीब 7 to 8 questions होते हैं. Now, अगर हम last कुछ सालों के pattern की बात करें, then you were asked some 8 questions in the VA section, but the pattern can definitely change, right? And if you're being asked 8 questions, let's assume, yes, Nigda, I'll be talking about it, so don't worry. Let's assume कि अगर 8 questions है VA section में, then you can definitely expect 2 to 3 questions out of those 8 questions on parajumbles. ठीक है, 2 से 3 parajumbles से 2 से 3 para summaries से odd one out के questions आ सकते हैं, para completion के आ सकते हैं. But parajumbles, I would say, is one of the most important elements of the whole VA section. कुछ और आए ना आए, parajumble आप definitely expect कर सकते हो, right? Now, let's have a look at the approach or the strategy that we are going to use in order to crack a parajumble. ऐसा तो है नहीं कि एक परफेक्ट अप्रोच है इसकी, ऐसी कोई परफेक्ट अप्रोच नहीं है या फिर ऐसा कोई परफेक्ट रूल नहीं है जिसको यूज करके यू कैन डेफिनेटली गेट योर आंसर करेक्ट. बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस in such a way that you definitely will end up getting more than 95% accuracy if you make enough efforts. राइट, सो एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी देखते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हमें इसको कैसे परफेक्ट बनाना है प्रैक्टिस करके, राइट? बट एज सच देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रैटेजी. डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इन ऑर्डर टू क्रैक पैराजम्बल्स. हमें इसे परफेक्ट बनाना है डेफिनेटली कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ.
Right now, how do we need to crack a parajumble? सबसे पहले see, I'll clear this thing out कि ये जो parajumble के questions होते हैं ये theta based होते हैं. I hope you might be knowing this. What is theta based question? Theta का full form क्या होता है? What is theta's full form? Yes, anyone? हम बोलते हैं ना कि ये टीटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जैक्टली, टाइप इन द आंसर. टाइप इन द आंसर में आपको बेसिकली ऑप्शंस नहीं देते हैं, आपको टाइप करना पड़ता है आंसर. सो दैट्स नोन एज अ टीटा बेस्ड क्वेश्चन. और वीए सेक्शन में ही नहीं, हर एक सेक्शन में, यानी कि तीनों सेक्शंस में आपको कुछ टीटा बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, एक इसका ड्रॉबैक है और एक अच्छी चीज है टीटा बेस्ड क्वेश्चंस की. सबसे पहले ड्रॉबैक की बात करते हैं. दैट obviously you're not given any options, so you have to literally type in the whole answer, whether it's a parajumble or whether it's any question being asked in quant or LRDI section. You have to completely type in the answer. But iska ek advantage hai that there is no negative marking, right? Exactly, Nahid, correct. तो इसमें negative marking नहीं है, तो अगर आप गलत दे भी देते हो आंसर, then you are not at a loss. मार्क्स नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट कुछ लॉस नहीं होगा. I mean, I'm not talking about the overall percentile, लेकिन जो आप टाइप कर रहे हो आंसर, उससे एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी, राइट? सो देयर इज वन गुड थिंग एंड वन बैड थिंग. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको बैलेंस करके कैसे चलना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैंने बैलेंस क्यों बोला, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट अज्यूमिंग दैट इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, टीटा बेस्ड क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो चलो इनके पीछे बस इन्हीं को अटेम्प्ट करने में लग जाते हैं. That's really bad. You should not be doing it, and I'll tell you why. मैं आगे जब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझाऊंगी तब I'll also tell you the reasons कि क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए. But for now, let's just go back to this approach thing. आपको सबसे पहले क्या करना है while solving a parajumble? The very first thing and the most important thing is to identify the starting sentence of a paragraph, because parajumble is nothing but a jumbled paragraph kept in front of you, right? तो ये पैराग्राफ जंबल जो है उसमें होता क्या है, 4 स्टेटमेंट्स होंगे जंबल्ड अप फॉर्म में. सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना है, राइट? स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ अ पैराजंबल. अगर ये नहीं किया देन देयर आर हाई चांसेस दैट यू माइट नॉट एंड अप गेटिंग अ करेक्ट आंसर. लेकिन आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढने जाओ, उससे भी पहले you have to find out the purpose of the paragraph. Now you might wonder, why is this necessary? Purpose ढूंढना क्यों जरूरी है? Anyone? What is this purpose? ये purpose होता क्या है? When I say that you have to find out the purpose of a parajumble, what do I mean by that? Any idea? Yes, Khushi, correct? Yes? Central idea, exactly. What the paragraph is about. Yes, all of you are correct. तो purpose ढूंढना क्यों important है? Why is it important in a parajumble? Because parajumble में ऐसे कोई summary based questions तो आते नहीं है, main idea based questions आते नहीं है. Then why do we really need to know the purpose of a parajumble before we proceed ahead? See, what happens is, बहुत सारे parajumbles में पहली चीज, बहुत difficult subject matter include हो सकता है. They might ask you to solve a parajumble wherein you're not even aware about the subject matter. You don't even know what's going on in the whole paragraph. तो अगर आपको पैराग्राफ में पता ही नहीं है कि बात किस चीज की हो रही है, या फिर आपको मेन आइडिया का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, then definitely you should not move ahead and try to proceed with that parajumble, because there are high chances that you might end up getting that question wrong. Why? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को अरेंज करते हो, just treat it as a puzzle, ठीक है? ये पजल ही है एक तरह का, जिसपे आपको चीजें अरेंज करनी है. जस्ट लाइक यू प्ले दैट गेम, राइट? अलग अलग पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को आपको अरेंज करने होते हैं सो दैट यू मेक अ कंप्लीट पिक्चर. दैट्स नथिंग बट अ पजल, राइट? सो पैराजंबल भी एक टाइप का पजल है. Now just imagine, अगर आप, I hope you guys know what I'm talking about. अगर आप अलग अलग पार्ट्स को अरेंज करके एक पूरा पिक्चर बना रहे हो, और अगर आपको पता ही नहीं है कि वो पिक्चर है किस चीज की, right? If you don't know कि आप बना क्या रहे हो, then will you be able to arrange those parts of the puzzle correctly? Obviously not, right? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको बनाना क्या है. Let's say assume कि एक पिक्चर दिया है आपको घर का, और आपको पता है that you have a goal of making a house by connecting different parts of that cardboard. Right? So you have a goal in your mind. आपके पास एक प्रॉपर गोल है कि मुझे अलग अलग पार्ट से एक पूरा घर बनाना है.
बट इफ यू डोंट इवन नो कि बनने क्या वाला है, तो आप डेफिनेटली कुछ भी अरेंज करने लगोगे, राइट? सेम थिंग अप्लाइज हियर एज वेल. अगर आपको पता ही नहीं है कि पैराग्राफ में बात किस चीज की हो रही है, इफ यू डोंट इवन नो द पर्पस और द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, देन हाउ द हेल आर यू गोइंग टू अरेंज दैट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, राइट? सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप अप्रोच करो उसको, या फिर क्वेश्चन आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करो. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द पर्पस और द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. अदरवाइज डोंट मूव ऑन एंड डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट इट. अगर आपको मेन आइडिया नहीं पता है तो खुशी खुशी उसको इग्नोर करके दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, और जस्ट टाइप इन एनीथिंग दैट यू फील लाइक, बिकॉज एज सच देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. नेक्स्ट, यस अनुष्का, टेल मी, अगर इससे कुछ रिलेटेड डाउट है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज आई एम स्पेशली गोइंग टू गिव यू लास्ट 5 to 7 minutes to ask the doubt, so don't worry about them. Okay, लेट्स मूव ऑन नाउ. इसके बाद क्या करोगे? पर्पस ढूंढने की. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ का पर्पस आपको नहीं समझ आया, तो जस्ट मूव ऑन, इग्नोर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन, राइट? यस अनुष्का, इट कैन डेफिनेटली स्टार्ट. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट हो सकता है और कब स्टार्ट हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बोला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू सपोज टू डू इन अ पैराजम्बल इज यू नीड टू आइडेंटिफाई द ओपनिंग सेंटेंस. ओपनिंग सेंटेंस यानी क्या होता है? ऐसा कोई सेंटेंस ढूंढना जो पैराग्राफ स्टार्ट कर सकता है, राइट? सो यू हैव टू फाइंड एन ऑप्शन दैट यू थिंक कैन स्टार्ट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. अब ये ढूंढोगे कैसे? सी, फर्स्ट स्ट्रैटेजी और फर्स्ट अप्रोच इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एन ओपनिंग स्टेटमेंट इज टू check the options that start with the introduction of a particular person or a particular object. So अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है जहां पे किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, then that's, in most of the cases, 99% of the cases, that statement is going to be the opening statement. ठीक है? बिकॉज अगर कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है और पूरा का पूरा पैराग्राफ उसी के बारे में बात कर रहा है, उसी पर्सन या उसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वही आपका ओपनिंग स्टेटमेंट होगा जो पर्सन या ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, राइट? बिकॉज जब भी आप आर्टिकल लिखते हो कोई, या फिर कोई ऐसे लिखते हो, तो व्हाट डू? यू फर्स्ट इंट्रोड्यूस दैट पर्सन एंड देन यू टॉक अबाउट दैट पर्सन इन एज यू नो बाय इलैबोरेटिंग इट. तो सबसे पहले ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो, फर्स्ट स्ट्रैटेजी, जो कि किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हो. अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है डायरेक्टली, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप उल्टी वो बोलते हैं ना, what do you call it? I just forgot that idiom or that phrase. उल्टा करके उसको निकालना है, right? So you basically don't have to find that opening statement directly. You have to do that indirectly. अब indirectly कैसे करना है? अगर direct answer नहीं मिल रहा है तो indirectly पहले गलत options को eliminate करो, अपने आप लास्ट में सही आंसर बच जाएगा. Now, how do you have to eliminate the wrong options? Now, here I'm not talking about the wrong options that cannot fit properly. Here I'm talking about the wrong options that cannot be your opening statement. तो ऐसा पता कैसे लगेगा कि कौन सा opening statement नहीं है? You have to eliminate those options which are starting with pronouns, right? क्योंकि अगर कोई statement pronoun से start हो रहा है, तो obviously उसका जो introduction है वो statement में नहीं हो सकता. For example, if you are talking about a particular person or a particular concept in a paragraph, then what do? You introduce that concept in the first statement, and then you talk about that person or that concept using pronouns. या तो आप it से elaborate करने लगते हो, या he से करने लगते हो, whatever जिसको भी आपने introduce किया है. अगर person को introduce किया है तो फिर नीचे elaborate आप क्या pronoun use करके करोगे? he या she. राइट? तो अगर आप नीचे ही शी यूज करके बात कर रहे हो, देन दोज स्टेटमेंट्स आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू बी योर ओपनिंग स्टेटमेंट्स. क्योंकि जब आप प्रोनाउंस यूज करते हो तो आप इलैबोरेशन करते हो, आप इंट्रोडक्शन नहीं करते हो, राइट? सो यू हैव टू एलिमिनेट ऑल दोज ऑप्शंस दैट आर स्टार्टिंग विद प्रोनाउंस. आप ऐसे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो जो कि द से स्टार्ट हो रहे हो. व्हाई? बिकॉज द एक स्पेसिफिक चीज को यूज बताने के लिए एक आर्टिकल यूज किया जाता है. वेन एवर यू यूज द एज एन आर्टिकल, यू बेसिकली वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग. अब अगर वो स्पेसिफिक चीज से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो पैराग्राफ को, देन ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि लेट्स से व्हेन आई से दैट द बुक इज माय फेवरेट,
अब अगर ये ओपनिंग स्टेटमेंट है तो ये डेफिनेटली पैराग्राफ गलत होगा, पैराग्राफ की बिगिनिंग ये हो ही नहीं सकती। व्हाई? बिकॉज आई डोंट इवन नो व्हाट बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मैंने द बुक लिखा है तो ऑब्वियसली मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूं, और ये बुक कहीं ना कहीं कोई स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस हुई होगी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली वही स्पेसिफिक बुक की बात कर रहा है, विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन सम अदर स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी आवर ओपनिंग स्टेटमेंट, नॉट दिस। ठीक है? सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है while eliminating the wrong options as opening statements. If you see an option starting with pronouns, or if you see an option starting with a specific article the, or if you see a statement starting with some random details जो कि आपको लगता है कि ऐसे वर्ड्स से हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता है, देन यू हैव टू कंसिडर देम एलिमिनेटेड एज योर ओपनिंग स्टेटमेंट्स। अब बहुत बार क्या होता है दैट ओपनिंग स्टेटमेंट्स कैन स्टार्ट विथ वर्ड्स सच एज बट, ऑल्दो, देयरफॉर। आपको लगता है कि ये सारे वर्ड्स हमारे ओपनिंग स्टेटमेंट में हो ही नहीं सकते, बट इट्स अ मिथ। हो सकते हैं, आई वुड से 99% केसेस में नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई पेपर सेटर बहुत ज्यादा खराब होगा और वो आपको कंफ्यूज करने में लगा होगा, इफ ही वांट्स कि आप लोग गलत ही करके आओ, तो वो डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है? आई डू दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स। वाई डू आई डू दिस? ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि पैराजंबल जब भी कोई पेपर सेटर एक्सट्रैक्ट करता है पेपर में से, तो जरूरी नहीं है कि वो आर्टिकल के शुरुआत से ही पैराजंबल को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रखे। What he can do is वो पैराजंबल बीच में कहीं से भी ले सकता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल के 4 पैराग्राफ्स है, राइट, एंड दिस इज लेट्स से एन आर्टिकल फ्रॉम एऑन एसेज। ये एऑन एसे का पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है। नाउ लेट्स से द फर्स्ट पैराग्राफ टॉक्ड अबाउट अ सर्टेन पर्सन। ठीक है? अ पर्सन नेम्ड मिस्टर किंग। ठीक है? ये कोई मिस्टर किंग नाम का एक पर्सन है जो कि पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड देन द ऑथर टॉक्ड अबाउट दैट पर्सन इन डिटेल। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो भी बातें हो रही है वो फर्स्ट पैराग्राफ के कंटिन्यूएशन में हो रही है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बट है, राइट? ऑब्वियसली हो सकती है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है फर्स्ट पैराग्राफ का। तो अगर सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन बट से स्टार्ट हो रही है एंड उसने आपको, जो पेपर सेटर है, उसने आपको सेकंड पैराग्राफ में से कहीं 4 स्टेटमेंट्स उठा के रख दिए पेपर में, देन ऑब्वियसली आपका जो पैराजंबल है वो बट से स्टार्ट हो सकता है। बट दिस विल बी रेयर। अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी पैराजंबल आता है देन यू कैन एक्सपेक्ट सच केसेस। रेयर होंगे लेकिन हो सकते हैं, देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्ट्रिक्टली एलिमिनेट मत करो किसी ओपनिंग स्टेटमेंट को, उसको कंसिडर करके रखो। ठीक है? पूरी सीक्वेंस बनाओ, एंड देन इफ यू फील कि फर्स्ट स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी के 3 जो स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपरली अरेंज हो रहे हैं, देन इन द एंड यू कैन मेक अ डिसीजन ऑफ वेदर टू कीप दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट और नॉट, राइट? यस राहुल, इट कैन, बट क्या होता है प्रोनाउंस के केस में, अगर आप ही वाला जो स्टेटमेंट है वो एज एन ओपनिंग स्टेटमेंट ले रहे हो, तो सो सी व्हाट हैपेंस इज, अगर लेट्स से यहां पे किसी को इंट्रोड्यूस किया है, यहां पे लेट्स से मिस्टर किंग को इंट्रोड्यूस किया है, राइट? अब नीचे के सारे के पूरे आर्टिकल में ही इज डेफिनेटली गोइंग टू यूज ही एज अ प्रोनाउन फॉर मिस्टर किंग। वो वापस तो इंट्रोड्यूस करेगा नहीं इस पर्सन को पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करने के बाद। सो अगर आपको ऐसा कोई पैराजंबल मिलता है जिसमें डेफिनेटली ओपनिंग स्टेटमेंट में ही है, लेकिन फिर ओपनिंग स्टेटमेंट में अगर ही है तो बाकी कोई स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए मिस्टर किंग का, सिर्फ इलैबोरेशन ही होना चाहिए। अगर सिर्फ इलैबोरेशन है देन यू कैन डेफिनेटली हैव एन ओपनिंग स्टेटमेंट स्टार्टिंग विथ ही। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में इंट्रोडक्शन है मिस्टर किंग का, देन योर ओपनिंग स्टेटमेंट कैन नॉट स्टार्ट विथ ही। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। क्लियर राहुल? बाकी सबको भी यहां तक क्लियर है? Any doubts, any questions? Can I just have a yes in the chat box if you guys are listening to me and if all of this makes sense to you all? Yes? Okay, great. Now, let's go back. अनुष्का, there are always exceptions, इसलिए मैंने शुरू में बोला था 99% केसेस में। ठीक है? 99% केसेस में अगर पेपर सेटर इज गुड, इफ ही डजंट वांट टू कंफ्यूज यू, तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो बीच में से कहीं से आपको पैराजंबल नहीं देगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कब हो सकता है, राइट? सो यू जस्ट नाउ हैव टू बी श्योर कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप पूरा का पूरा पैराजंबल चेक करो।
and then you make sure के this yes अनुष्का definitely it goes. So the के लिए भी सेम चीज है, लेकिन सेम सिमिलरली अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट द से होता लिखा हुआ स्टार्ट कर रहे हो तो बाकी किसी स्टेटमेंट में फिर इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एलाबोरेशन ही होना चाहिए, राइट? सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझो एंड जस्ट कीप योर सेल्फ इन दी पेपर सेटर्स शूज एंड थिंक कि उसने आपको किस तरह से कंफ्यूज किया हो सकता है. अगर आप इस वे में सोचना शुरू कर दिया आपने तो हर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करके आओगे. जस्ट आप इमेजिन करो कि आप खुद वो क्वेश्चन सेट कर रहे हो, राइट? दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क, ट्रस्ट मी. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. अब आपने क्या किया, सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट को ढूंढा. After finding out the opening statement, what do? You find out mandatory pairs. Mandatory pairs is extremely important और बहुत बेनिफिट देती है, क्योंकि अगर आपको मैंडेटरी पेयर मिल गई देन हाफ ऑफ योर स्ट्रेस इज ऑलरेडी गॉन. क्यों? 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन तो पता लग गया कि पास पास होने वाले हैं. अब आपको सिर्फ बाकी के 2 अरेंज करने हैं. और अगर 2 मैंडेटरी पेयर्स मिल जाती है देन डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करके ही आओ, राइट? अगर आपको 2 मैंडेटरी पेयर्स मिल गई ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम उसको दे दो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि वो आपका आंसर करेक्ट होने वाला है. अगर आपको लगता है कि 2 मैंडेटरी पेयर्स फॉर श्योर आपको करेक्टली मिल गई है तो, राइट? सो आई होप यू गाइस नो व्हाट मैंडेटरी पेयर्स आर. मैंडेटरी पेयर्स क्या होती है? लेट्स से अगर आपको A B C D ऑप्शंस दिए हैं एंड इफ यू फील कि B और D तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ ही होने वाले हैं, उन दोनों को आप किसी भी हाल में अलग नहीं कर सकते हो, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी टुगेदर. तो अगर आपको पता है that B and D is making a mandatory pair, then all you have to do is you have to arrange A and C. या तो A and C ऐसे आ सकता है, या फिर A C B D आ सकता है, C A B D आ सकता है. There are a lot of options that you can get. तो ये वही हो गया प्रोबेबिलिटी. अगर आपको ये सारी चीजें आती है क्वांट में देन यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक सच थिंग्स. आपको सिर्फ ऑप्शंस देखने हैं कि आप कितने कितने ऑप्शंस हो सकते हैं. एंड अगर 2 मैंडेटरी पेयर्स बन गई, लेट्स से यू आल्सो नो दैट A और C साथ में आने वाले और B और D साथ में आने वाले हैं, तो एकदम ही इजी हो गया. इधर इट कैन बी ACBD और इट कैन बी BDAC, राइट? सो और अगर उसमें भी ओपनिंग स्टेटमेंट पता है देन almost your whole stress is gone. So see, it's parajumble. It's all about 2 most important things that you need to find out. सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट और दूसरी चीज मैंडेटरी पेयर्स. ये दोनों चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज इफ यू गेट एन आइडिया ऑफ दीज 2 थिंग्स देन देयर इज हाई चांस कि आप इसको डेफिनेटली करेक्ट करके आओगे. मोर देन 95% एक्यूरेसी के साथ पक्का करेक्ट होगा, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है कि 100% एक्यूरेसी चाहिए, वरना आपको आधा मार्क भी नहीं मिलेगा. बिकॉज सी द पॉइंट इज टाइप इन द आंसर है. ऐसा तो नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. अगर एक ऑप्शन भी इधर से उधर हो गया तो आपका पूरा मार्क गया, आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा. यू आर नॉट इवन गोइंग टू गेट अ पार्शियल मार्क फॉर दिस. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेफिनेटली एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हो और सही टाइम लगा के सही टाइम सही क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? सो आई होप द अप्रोच इज क्लियर. ये 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पहली चीज फाइंडिंग आउट द ओपनिंग स्टेटमेंट एंड यू नो हाउ टू फाइंड आउट एन ओपनिंग स्टेटमेंट. ईदर यू फॉलो अ डायरेक्ट अप्रोच बाय डायरेक्टली पिकिंग द ओपनिंग स्टेटमेंट, बाय हैविंग अ लुक कि कौन से पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है किसी पर्सन और ऑब्जेक्ट को, या फिर आप इनडायरेक्ट मेथड से जाते हो बाय एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस एज ओपनिंग स्टेटमेंट्स. If you get a pronoun or if you get an article the, or if you get any such word that you feel cannot start a statement, then you can choose that particular option as not being an opening statement, right? And you can eliminate it. So I think it fairly looks easy till now. इसके बाद mandatory pairs ढूंढ लो. mandatory pairs मिल जाने के बाद क्या करोगे? बस आपको अरेंज करना है चीजें. और अगर आपको लगता है कि क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं मिल पा रहा है then there are हाई चांसेस के शायद आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट बीच में कहीं पे रख दिया हो. सो नाउ दिस ऑल्सो बिकम्स अ ट्रिकी पार्ट, बिकॉज मोस्ट केसेस में क्या होता है, अगर आपको स्टार्टिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट दोनों मिल जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाती है आपके लिए चीजें. बट इफ यू आर ओनली एबल टू फाइंड आउट द स्टार्टिंग स्टेटमेंट देन यू माइट हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढो, मैंडेटरी पेयर ढूंढो, और फिर एंड में क्या आना चाहिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, वो भी आपको मेक श्योर करना है. बट अगेन आई वुड से ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको पैराजम्बल्स में ध्यान रखनी पड़ती है, बट दीज 2 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर ये दोनों चीजें भी आपने कर ली ना, स्टार्टिंग स्टेटमेंट एंड मैंडेटरी पेयर्स, देन मोस्ट ऑफ योर वर्क इज ऑलरेडी डन. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट अ फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स that you're going to use in order to solve these parajumbles, and then we are going to have a look at
the most important questions of parajumbles that I've personally have handpicked from the CAT past papers, right? Now, there are no such major tips and tricks to crack these parajumbles because इसमें ऐसा कुछ, you know, इतनी कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है that you need to, it's just, you know, that basic सी अप्रोच है वो आपको फॉलो करनी है, ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढना है, मैंडेटरी पेयर्स ढूंढनी है, एंड देन यू आर थ्रू विद इट, बिकॉज ऑप्शंस ही नहीं है, तो ऑप्शंस अगर नहीं होते तो इतनी स्ट्रैटेजीज आप सोच ही नहीं सकते हो. देयर आर नो ऑप्शंस, तो आपको क्या करना है, बस माइंड यूज करके पूरा का पूरा आंसर टाइप इन करना है. बट स्टिल I've tried my best to you know, make you aware of some most important tips and tricks so that you can use them and you can try your best to get 100% accuracy, right? Yes, I'll talk about it, Rahul. Firstly, don't say tata to tita, right? ये बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं that just because it's a tita based question, I'm not going to say a tata to it, right? मैं पक्का attempt करके आऊंगा उसको, and definitely you should. आपको करना चाहिए, but the point is you should not be investing more than time which is needed to for you to attempt that particular question. गलती क्या होती है कि आप लोग इन दोनों को मिक्स कर देते हो. You definitely should not ignore tita based questions. आपको obviously attempt करने चाहिए because there's no negative marking. So I'm not saying कि completely ignore करो. अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो कुछ भी टाइप करके आ जाओ, because अगर कुछ भी टाइप करके आते हो तो भी थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी होगी कि यू नो फ्लूक से करेक्ट हो जाए. बट the point is, just because it is not having any negative marking doesn't mean that you'll go and invest your lot of time on those kind of questions. No. Why? यहाँ पे ज्यादा टाइम क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? बिकॉज जितना एडवांटेज है नेगेटिव मार्किंग ना होने का, उतना ही डिसएडवांटेज है करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होने का. राइट? वाई? टीटा बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है आंसर करेक्ट होने की, बिकॉज यू डोंट हैव ऑप्शंस, स्पेशली इन पैराजम्बल्स. पैराजम्बल्स में तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है. वाई? बिकॉज सी देयर आर 4 ऑप्शंस. इस बात को समझो, 4 ऑप्शंस है और आप इन 4 ऑप्शंस को बहुत सारे वेज में अरेंज कर सकते हो. You guys know probability, right? तो आप आइडिया लगाओ कि 4 ऑप्शंस को आप कितने सारे वेज में अरेंज कर सकते हो, और आपको उन सारे वेज में से सिर्फ एक करेक्ट आंसर चाहिए. अगर एक भी ऑप्शन इधर से उधर हुआ, लेट्स से यू ट्राई योर लेवल बेस्ट, आपने बहुत सारा टाइम देके अरेंज कर दिया BACD, लेकिन अगर करेक्ट आंसर BCAD है तो आपका सारा का सारा टाइम गया, राइट? और मार्क्स भी गए. You're not going to get half mark or partial mark for this particular answer. So it's very important for you to realize कि parajumbles में सबसे पहले probability बहुत कम होती है to get the exact correct answer, right? और दूसरी चीज, just because it's a negative, there is no negative marking doesn't mean that you'll keep on investing your time on such questions. right? तो सोच समझ के डिसाइड कर लो पहले कि कैसे टाइप का क्वेश्चन है और मुझे कितना टाइम देना है. If you feel that you're investing, so अभी किसी ने पूछा how much time should we ideally give to a parajumble? I would say अगर 8 questions है VA के and if you are getting 10 minutes, तो ideally आपको you know 1-1.5 मिनट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एक VA के क्वेश्चन में, assuming that you want to attempt all of them. Now 1 से 1.5 मिनट क्यों बोला? Because obviously जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में इक्वल टाइम जाए. कुछ क्वेश्चन बहुत कम सेकंड्स में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन में शायद 1.5 से 2 मिनट भी लग जाए. बट नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ना दो जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है करेक्ट आंसर आने की. एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि पैराजम्बल में जरूरत से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. जितना टाइम आप पैराजम्बल को दोगे, अगर उतना टाइम पैरा समरी को दिया तो ज्यादा चांसेस है करेक्ट आंसर होने के, राइट? बिकॉज 25% प्रोबेबिलिटी है चारों ऑप्शंस में एटलीस्ट एक करेक्ट होने की, बट इसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, राइट? सो डोंट इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन सच क्वेश्चंस. डिसाइड कर लो कि 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, और उसमें भी इफ यू फील कि 10-15 सेकंड ज्यादा दे के शायद करेक्ट आंसर आ सकता है तो दो, अदरवाइज जस्ट मूव ऑन. कुछ भी टाइप करके जस्ट मूव ऑन. कुछ भी टाइप इसीलिए बिकॉज अगेन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो इट वुड बी फुलिश ऑफ यू टू जस्ट कीप इट ब्लैंक. कुछ भी लिख दो, ठीक है? नेक्स्ट, ग्रामर बेसिक्स आर मस्ट. बहुत जरूरी है. सी मोस्ट ऑफ यू विल टेक दिस लाइटली, बट डोंट, बिकॉज पैराजम्बल्स में ग्रामर बहुत ज्यादा मैटर करती है. आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव स्किप्ड माय ग्रामर सेशंस और नॉट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कैट में ग्रामर हमें पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज कैट में 0 क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर, विच इज ट्रू.
कैट डजंट आस्क डायरेक्ट ग्रामर क्वेश्चंस, बट बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पे आपको ग्रामर का एप्लीकेशन चाहिए ही होता है. एंड वन सच एग्जांपल इज पैराजंबल्स. पैराजंबल्स में बहुत हाई एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं ग्रामर के. सो हैव टू मेक श्योर कि आपके बेसिक्स क्लियर है, एटलीस्ट प्रोनाउंस, नाउन्स और आर्टिकल्स इन 3 चैप्टर्स के, बिकॉज दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी मच क्रूशियल फॉर यू टू अटेम्प्ट अ पैराजंबल करेक्टली. ठीक है, तो अभी भी टाइम है. अगर ग्रामर बिल्कुल नहीं आती है तो एटलीस्ट ये 3 चैप्टर्स को प्रायोरिटी में रखना एज फार एज योर कैट एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड एंड पैराजंबल इज कंसर्न्ड. नाउन्स, प्रोनाउंस एंड आर्टिकल्स. ठीक है, ये 3 चीज. एंड समटाइम्स कंजंक्शंस कैन ऑल्सो प्ले अ रोल. ठीक है, तो ये 4 प्लीज ध्यान में रख के चलना: कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, नाउन्स, प्रोनाउंस. नेक्स्ट, वर्क विथ ट्रायल एंड एरर मेथड. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू माइट फील कि इतना टाइम होता ही नहीं है ट्रायल एंड एरर का, एक बार ट्राई कर लिया फिर आगे बढ़ गए. ऑब्वियसली ट्रू, इट्स डेफिनेटली ट्रू, बट अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी ना तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड भी बहुत जल्दी अप्लाई कर पाओगे. सो ऑलवेज क्या करो, जब कोई पैराजंबल का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, हाथ में लेके ही बैठो पेन एंड पेपर. ठीक है, और फटाफट से सीक्वेंसेस बनाना स्टार्ट करो. डोंट मेक सीक्वेंसेस इन योर माइंड. आराम से पेपर पे सीक्वेंसेस बनाने का ट्राई करो. एक सीक्वेंस बनाई BACD, अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं बैठ रही है, कैंसिल कर दो, उसको रीअरेंज करने का ट्राई करो. बट जस्ट बी क्विक. बहुत बार क्या होता है पैराजंबल में, हम एक सीक्वेंस बनाते हैं और उसको बना के बैठ जाते हैं, बट उसको देखते रहते हैं बस. डोंट डू दैट, राइट? जस्ट बी क्विक. जितनी सीक्वेंसेस आपको लग रही है लिख दो पेपर पे, जो वैलिड लग रही है, राइट? जो रेलेवेंट लग रही है वो लिख दो. 4 से 5 ऐसी सीक्वेंसेस आपको मिल जाएगी जो कि आपको लगेगी वैलिड है. एंड देन जस्ट ट्राई टू चूज, ट्रीट देम एज ऑप्शंस. ठीक है, इफ यू फील के BACD हो सकता है लेकिन मुझे लग रहा है CABD भी हो सकता है, मुझे लग रहा है DABC भी हो सकता है, तो उन 4-5 ऑप्शंस जो भी आपको लग रहे हैं उनको लिख दो. एंड देन ट्रीट देम एज ऑप्शंस, जैसे आप RC के ऑप्शंस को ट्रीट करते हो. आप ऐसे ही सोचो कि ये मेरे ऑप्शंस है पैराजंबल के, और उसके बाद एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज करो उन ऑप्शंस में. ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू वर्क द बेस्ट वे पॉसिबल. ठीक है, आप खुद के ऑप्शंस क्रिएट करो. अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए तो वो खुद के ऑप्शंस कब क्रिएट करोगे? जब आप फटाफट ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करोगे. सो इफ वन डजंट वर्क, दूसरा उसको रीअरेंज करने का ट्राई करो. वो भी नहीं हो रहा, फिर वापस से रीअरेंज करने का ट्राई करो. बट जस्ट बी फास्ट विद दिस. बी फास्ट. एंड देन लास्ट में 4 से 5 जो भी आपके सामने सीक्वेंसेस है उनको एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से एक एक एलिमिनेट करते जाओ. एंड इन द एंड जस्ट वर्क अकॉर्डिंगली. 2 सिमिलर ऑप्शंस बचते हैं, दोनों को कंपेयर करो एक दूसरे से, जो बेस्ट लग रहा है उसको टाइप कर दो. राइट, दिस इज द इजिएस्ट वे टू डील विद सच पैराजंबल्स जो कि आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज हैव अ क्विक ग्लांस. सी नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हैविंग अ क्विक ग्लांस? इफ यू फील कि आपके पास 2 से 3 पैराजंबल के क्वेश्चंस है पेपर में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन 2 से 3 सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं उनका एक क्विक ग्लांस ले लो, जैसे आप पैसेजेस का लेते हो. ठीक है, मैंने आपको बहुत बार ये चीज बोली है कि जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करने जाते हो कैट के, व्हाट शुड यू डू? एक क्विक ग्लांस ले लो सारे के सारे पैसेजेस का और फिर उन्हें प्रायोरिटी दो. बिकॉज नॉट एवरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाइज इन योर कंफर्ट जोन. कुछ पैसेजेस होंगे प्योर फिलोसफी पे, हिस्ट्री पे, जो कि शायद आपके कंफर्ट जोन में लाई ना करते हो, तो उनको पहली प्रायोरिटी मत दो. पहली प्रायोरिटी बाकी के पैसेजेस को दो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू कंप्लीटली इग्नोर दोज पैसेजेस, इट्स जस्ट दैट ऑलवेज ट्राई टू प्रायोरिटाइज दोज थिंग्स. तो जैसे RCs में करोगे वैसे ही यहीं पे भी करो. 2 से 3 क्वेश्चन है अगर पैराजंबल्स के, देन जस्ट हैव अ क्विक ग्लांस. हैविंग अ क्विक ग्लांस विल नॉट टेक मोर देन 10 to 15 seconds. तीनों का खाली एक बार नजर घुमा दो एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ ऑल दोज पैराग्राफ्स. जिस पर्पस से ज्यादा कंफर्टेबल हो उसको पहले अटेम्प्ट करो. ठीक है, सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. बिकॉज बहुत बार क्या होता है पैराजंबल्स में भी कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ पैराग्राफ्स एक्सट्रीमली ट्रिकी होते हैं. ट्रिकी फॉर यू पर्सनली, जरूरी नहीं है कि बाकी सबके लिए भी ट्रिकी हो, बट एज इन ट्रिकी मतलब अगर आपको उसके पर्पस से, सेंट्रल आइडिया से कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा है, देन जस्ट ट्राई टू कीप इट इन द एंड. ठीक है, नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज क्वेश्चंस. जैसे मैंने बोला, आफ्टर हैविंग अ क्विक ग्लांस व्हिच शुड नॉट टेक मोर देन 10 seconds, प्रायोरिटाइज योर क्वेश्चंस. एंड लास्ट में ऑलवेज ट्राई टू रीरीड एंड कंफर्म. ठीक है, नाउ यू माइट फील कि इतना टाइम नहीं होगा, बट दिस इज ऑलवेज ट्रू अगर आपके पास टाइम है तो. इफ यू फील दैट लेट्स से यू आर 95% श्योर about a particular sequence,
तो 10 सेकेंड्स और लगा के उसको एक बार रीरीड करके कंफर्म कर लो। क्योंकि क्या होता है, जब हम सीक्वेंस बनाते हैं, लेट्स से आपको लगा BACD सीक्वेंस है, तो आप तभी तुरंत टाइप कर देते हो। लेकिन जब आप उस सीक्वेंस को एज अ पैराग्राफ पढ़ने का ट्राई करते हो, देन यू रियलाइज दैट नो, इट जस्ट डजंट मेक सेंस, समथिंग इज रॉन्ग हियर। ठीक है, वो इंट्यूशन डेफिनेटली आ जाता है जब आप उसको सीक्वेंस में रीड करने का ट्राई करते हो। तो अगर आपको लगता है कि 95% श्योर हो किसी क्वेश्चन को लेके और हाई चांस है दैट आप वो क्वेश्चन करेक्ट करके आओ, तो एक बार 10 सेकेंड्स लगा के उसको पढ़ लो। ठीक है, बिकॉज अगर आपकी एक भी गलती हुई ना, तो आपको बहुत अफसोस होगा कि शायद 10 सेकेंड्स और दे दिए होते और एक ऑप्शन इधर से उधर कर दिया होता, तो करेक्ट हो गया होता और मार्क्स आ गए होते। सो इफ यू आर 95% और 90 से लेके 100% के बीच में कहीं है आपकी श्योरिटी लेवल, तो प्लीज गो फॉर इट, स्पेंड 10 एक्स्ट्रा सेकेंड्स और उसको कंफर्म कर लो। दिस विल मेक यू श्योर कि आपने जितना टाइम स्पेंड किया है वो एटलीस्ट वर्थ इट था, right? So I hope all these tips and tricks are clear to you all. Can I please have a yes in the chat box if everything is clear till now? Yes. Naheed, same 2 to 3 questions on para summary you can expect. Para jumbles, para summaries, in दोनों का most probably equal weightage रहने वाला है, because both of them are extremely important. Yes. थैंक यू सो मच हिमाक्षी, अभी तो सेशन खत्म ही नहीं हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे जा रहे हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि आप आराम से उसको पढ़ो। मे बी ये सारी जो भी स्ट्रैटेजीज थी, अप्रोच हमने देखी, वो यूज करके एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। कम ऑन, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। Bharat, in most of the cases it is. Yes. Okay. Come on, start attempting this question. Take your time and then post in your answers in the chat box. Okay, fine. Let's try to understand this. थोड़ा सा tricky है, so we'll just give it a few seconds. अब ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में बात किस चीज की हो रही है? It's about the recession in the United States and the reasons for the recession, main cause for the recession, key trigger we can say, right? Now, अगर ए ऑप्शन की बात करें, a drop in household consumption due to the rise in private debt was a key driver of the recession in the United States. Fine, can be our opening statement, but let's just keep it as a contender. बी ऑप्शन इंडीड से चालू हो रहा है। इंडीड हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज को एम्फसाइज करते हैं या किसी चीज पे और ज्यादा फोकस करते हैं। सो दिस मोस्ट प्रोबेबली इज नॉट गोइंग टू बी द ओपनिंग स्टेटमेंट। डी भी ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बिकॉज इट स्टार्ट्स विद दिस, हाउएवर, सो दिस, ये प्रोनाउन किस चीज के लिए यूज हुआ है, वी डोंट नो। सी क्या बोल रहा है? A crucial aspect of the 2008 financial crisis was the buildup of debt in households, and exactly that's what we wanted. ऐसा कोई ऑप्शन जो इंट्रोड्यूस करे प्रॉब्लम को, राइट? अनुष्का, व्हाई नॉट ए? बिकॉज ए जो है वो सी के बारे में ज्यादा इलेबोरेशन कर रहा है। ए क्या बोल रहा है? अ ड्रॉप इन हाउसहोल्ड कंजम्पशन ड्यू टू द राइज इन प्राइवेट डेट वाज अ की ड्राइवर ऑफ द रिसेशन इन द यूएस। ये की ड्राइवर इन द ऑफ द रिसेशन इन द यूएस है, whereas सी क्या बोल रहा है? अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वाज व्हाट? वाज द बिल्डअप ऑफ डेट इन हाउसहोल्ड्स एंड नॉन फाइनेंशियल फर्म्स। तो अगर आप देखोगे, ये जो ए ऑप्शन है ना, वो सी को फॉलो कर रहा है। ए ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं है, ए सी के बाद आ रहा है। वाई? एक बार फिर से पढ़ के देखो। सी क्या बोल रहा है कि जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का, वो क्या है? इट इज द बिल्डअप ऑफ डेट इन हाउसहोल्ड्स एंड इन नॉन फाइनेंशियल फर्म्स। तो एक क्रूशियल एस्पेक्ट क्या बताया है कि जो डेट का बिल्डअप हुआ हाउसहोल्ड्स में, वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का। ए क्या बोल रहा है? ए इसको इलेबोरेट कर रहा है, इसको आगे लेके जा रहा है एंड इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन डिटेल। कैसे? अ ड्रॉप इन हाउसहोल्ड कंजम्पशन ड्यू टू द राइज इन प्राइवेट डेट। पहले क्या बोला कि जो डेट है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये डेट क्रिएट कैसे हुआ? The same debt which we are talking about in the C option. ये debt कैसे create हुआ? A drop in household consumption due to the rise in private debt was a key driver of the recession in the United States. So you can clearly see कि C और A एक दूसरे के साथ mandatory pair बना रहे, with C being the opening statement because it is introducing the crucial aspect of the financial crisis. And then जो A है वो kind of C का consequence बता रहा है। सी ने क्या बोला? क्रूशियल एस्पेक्ट प्राइवेट डेट है या फिर डेट है इन दी हाउसहोल्ड। फिर ए क्या बोल रहा है कि ये जो प्राइवेट डेट में राइज हुआ, इससे क्या हुआ? अ ड्रॉप इन हाउसहोल्ड कंजम्पशन। रिपोर्ट वाज फॉर व्हिच कंट्री? वी डू नॉट नो, Anushka, definitely we do know, and it's not about the particular country. It's you can clearly see that both of them are connected to each other.
राइट जो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस को इंट्रोड्यूस किया गया है वही सी ऑप्शन में किया गया है. सो ऑल्सो इफ यू सी कि ये जो डेट को इंट्रोड्यूस किया गया है ये वही डेट है जिसकी बात ए में हो रही है. दैट्स व्हाई इट सेज दैट अ ड्रॉप इन हाउस होल्ड कंजम्पशन ड्यू टू द राइज इन डेट. अगर हम ए को पहले रखते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि ये राइज इन डेट हुआ कब. वो राइज इन डेट तो सी में है. राइट एग्जैक्टली करेक्ट राघव. सो ए क्या बोल रहा है, सी को आगे लेके जा रहा है दैट अ ड्रॉप इन हाउस होल्ड कंजम्पशन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस, ड्यू टू राइज इन प्राइवेट डेट वाज अ की ड्राइवर ऑफ द रिसेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब सी और ए के बाद बहुत सारे लोगों ने पहले बी को रखा है. ठीक है, बट टेल मी वन थिंग, बी बोल रहा है कि जो लैक ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल है ओवर द ग्रोथ इन क्रेडिट एज वेल एज द फ्लो ऑफ क्रेडिट वाज द इशू. लेकिन बी और डी एक दूसरे से कनेक्टेड है बिकॉज बी एंड डी टॉक अबाउट द सिमिलर कॉन्सेप्ट. ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, रेगुलेटरी फेलियर का. तो बी भी रेगुलेटरी फेलियर की बात कर रहा है, डी भी रेगुलेटरी फेलियर की बात कर रहा है. तो अगर हम बी के बाद डी को रखते हैं तो डी में जो हाउएवर है दैट वोंट मेक सेंस. हाउएवर हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं, जब हम किसी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो. तो अगर आप डी को बी के बाद रखते हो तो बी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसको डी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा बिकॉज बी एंड डी टॉक अबाउट द सेम इशू. इसीलिए आप ए के बाद डी को रखोगे क्योंकि ये जो हाउएवर है वो ए को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है. राइट व्हाई, क्योंकि ए क्या बोल रहा है that this debt thing was a key driver of the recession. लेकिन D क्या बोल रहा है, this however is not to negate the view that regulatory failure was the principal cause of crisis. तो जैसे ही आपने बोला कि जो प्राइवेट डेट है वो एक की ट्रिगर है रिसेशन का, उसके बाद आप तुरंत उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके बोलते हो कि ये जो प्राइवेट डेट है वो तो की ड्राइवर है ही, लेकिन हमें ये नहीं भूलना कि प्रिंसिपल कॉज क्या है. प्रिंसिपल कॉज क्या है, रेगुलेटरी फेलियर. एंड दैट्स व्हाई यू आर कीपिंग डी आफ्टर ए बिकॉज डी में जो हाउएवर यूज हो रहा है वो ए को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए बोल रहा है दैट वी डेफिनेटली नो दैट द की ड्राइवर इज प्राइवेट डेट, but also we don't have to forget however that the principal cause is the regulatory failure and not the private debt. Clear? और इसके बाद डी के बाद आप बी को रखते हो बिकॉज बी डी को एलैबोरेट कर रहा है एंड इट सेज दैट इंडीड द लैक ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द ग्रोथ इन क्रेडिट as well as the flow of credit into the real estate issue was real estate was the issue. तो B जो है अगेन वो रेगुलेटरी फेलियर को ही इलैबोरेट कर रहा है और उसको समझाते हुए बोल रहा है that indeed for sure the lack of regulatory control which is the regulatory failure over the growth in credit as well as the flow of credit into real estate was the issue. Is it clear guys? I hope this made sense to all of you. Clear है? तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, you found out the पर्पस ढूंढा कि है किस बारे में, ये यूएस रिसेशन के बारे में है. अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कौन से क्राइसिस की बात हो रही है, वेदर आई एम एट ऑल अवेयर अबाउट दिस क्राइसिस और नॉट, तो इसको इग्नोर करके पहले आगे बढ़ जाओ दूसरे क्वेश्चंस पे. बट आई अज्यूम कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी नोइंग अबाउट दिस लेमैन ब्रदर्स क्राइसिस बिकॉज जो भी आपको ट्रस्ट में क्वेश्चंस होंगे, एग्जैक्टली भरत, जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे ना वो मेन टॉपिक्स पे ही आएंगे. कोई स्टोरी पे आएगा पैराजम्बल या फिर कोई ऐसी चीज पे आएगा जिसको आप लॉजिकली अरेंज कर सको. कोई सीक्वेंस है इवेंट्स के या फिर कोई स्टोरी है, कोई हिस्ट्री है कि पहले ये हुआ था फिर ये हुआ. मोस्ट प्रोबेबली पैराजम्बल्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे. सो ट्रस्ट मी, अगर आपको ये सारी चीजें पता होगी देन इट विल बी फार मोर इजियर फॉर यू टू क्रैक दीज क्वेश्चंस विद 100% accuracy, right? What I'm going to do is I'm going to share this PPT with all of you on the portal, and I've included some most important questions of parajumbles in this PPT. So I want all of you to try these and then ask me if you have any doubts, right? Now आपको जो भी मुझे बहुत सारे doubts आ रहे थे chat box में, so if you have any more doubts related to parajumbles or related to anything that we did today, please ask. All your doubts are welcomed. Okay, great. So see, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं which I think are the most important questions. So again I'll say I've handpicked these questions, so please इनको try करना, don't forget. And if you have any doubts, we can definitely solve them in our regular sessions, right? And
See, I hope you guys have learned a few interesting and new things about parajumbles, जो कि मैंने शायद regular sessions में बात नहीं की होगी जिनकी. So please try and remember these tips always while solving parajumbles in your examination. ठीक है? इसके अलावा, if you have any questions, we can definitely solve them in our regular sessions. Okay?